Students, welcome back. We in the previous class did studied about active and passive immunities, wherein active immunity is nothing wherein the antibodies are formed within our body because of the that is natural entrance of the pathogens inside our body, and artificial is wherein artificially the vaccine that is artificially dead or like inactivated pathogens are entered inside our body wherein the antibodies are formed. So that is active, wherein the antibodies are formed naturally. When we talk about the passive, the antibodies are injected directly, fine, and this antibodies are formed in some other organism. So basically we studied about this in the last class. Today in the same context we shall be studying about the vaccination and immunization. So when we talk about the word vaccination, so the word vacca is being derived from cow, wherein Edward Jenner was the one who discovered the first vaccine, fine, and that is why it was he is termed to be as the father of vaccination. And this word vacca, which was the first vaccine, basically was derived from the cow, that is of the smallpox, fine, for the smallpox which they derived from the cowpox that happened in the cow. So basically we will not go into the story of it, but vacca means cow, and wherein this word vaccination was been coined by Pasteur, fine. सो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन की जब बात करते हैं तो एडवर्ड जेनर, बिकॉज वो बहुत सारे वैक्सीन पे काम कर रहे थे. ऑन द कॉन्ट्ररी ये जो वर्ड है वैक्सीनेशन वो किसने दिया था, तो पैस्चर ने दिया था, फाइन. नाउ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, वैक्सीनेशन जो पूरा वैक्सीनेशन का कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, दैट इज द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम. कि भाई द इम्यून सिस्टम इनसाइड अवर बॉडी स्पेशलाइज्ड which is specialized for fighting against the pathogen has a very important thing, that is memory. It has which characteristics, memory. So now कौन ऐसी क्या चीज़ है, जैसे हमारे बॉडी की बात करो तो brain is the thing which keeps on the memory, but when we talk about the immune system, fine, when we talk about the immune system, who is the one who is responsible for memory in the immune system? So basically we know that both the types of lymphocyte, T lymphocyte and B lymphocyte, both of them have the memory cells, fine. That is B lymphocyte also has the memory cells and T lymphocyte also has the memory cells, fine, and these are the ones which are responsible for the memory of the immune system. Now वैक्सीन, व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड वैक्सीन, तो व्हाट इज़ अ वैक्सीन? जैसे हम बार बार पढ़ते हैं कि भाई और सुनते हैं कि भाई छोटे बच्चे को वैक्सीन दिलानी है, ये वैक्सीन हो गई, अब इसके बाद ये होगी, अब इसके बाद ये होगी. देयर इज़ अ चार्ट वी कीप अ ट्रैक ऑन फॉर द बेबीज टू बी वैक्सीनाइज्ड ऑन डे टू डे रूटीन, फाइन. सो बेसिकली वो वैक्सीन जो चीज़ है वो क्या होता है, व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट? सो इट इज़ नथिंग, वैक्सीन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ प्रिपेरेशन और एक्सट्रैक्ट ऑफ द डेड और अटेन्यूएटेड पैथोजेंस. एक्सट्रैक्ट ऑफ व्हाट, डेड या तो अटेन्यूएटेड. वो जो पैथोजेंस होंगे वो डेड होंगे या फिर अटेन्यूएटेड होंगे, मतलब में उन लोगों को वीक कर देते हैं. क्या कर देते हैं, उनको वीक कर दिया जाता है, फाइन, उनको एकदम से वीक कर दिया जाता है. सो डेड और अटेन्यूएटेड पैथोजेंस, जैसे कि हम जो वैक्सीन लेते हैं समझ लो, तो वो जो वैक्सीन से इंजेक्शन लेते हैं, फाइन, डॉक्टर्स छोटे बच्चों को जो इंजेक्शन दे रहे हैं समझ लो, तो उस इंजेक्शन के अंदर जैसे हमने बात की थी, तो ये क्या है, इट इज़ अ प्रिपेरेशन ऑफ व्हाट, ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ डेड और अटेन्यूएटेड पैथोजेंस. ये या तो डेड होंगे या तो एकदम वीक अटेन्यूएटेड पैथोजेंस होंगे जिनको किसी के बॉडी में डाला जाता है, फाइन. द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग द सेम इज टर्म टू बी एज वैक्सीनेशन. ये जो बन गया, ये जो चीज़ बन गई वो वैक्सीन है. अब इस जो प्रोसेस है जिनसे वो इंजेक्ट किया जाता है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे वैक्सीनेशन, फाइन. जैसे कि वैक्सीन जब आप दिलाते हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन. इट्स वेरी सिंपल, फाइन. अब वैक्सीनेशन की एक दूसरी भी डेफिनेशन है, जैसे कि अ प्रिपेरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स, फाइन, अ प्रिपेरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स. ऐसे समझ लो, फॉर एग्जाम्पल ये एक एंटीजन है समझ लो, हाँ, ये कोई एंटीजन है. अब ये एंटीजन जो है
इसको ऐसे बहुत सारे होते हैं, उनको डेड किया जाता है या तो फिर वीक कर देते हैं या तो फिर इनके प्रोटीन्स को लेके ऐसे इंजेक्शन बनाया जाता है. सो बेसिकली अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स फाइन ऑफ पैथोजेंस और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजेंस, इनएक्टिवेटेड वीकेंड या फिर उनके प्रोटीन्स हो सकते हैं फाइन. और उनको उस प्रिपरेशन को क्या बोलेंगे, वैक्सीन बोलेंगे हम. एंड इट्स इंट्रोडक्शन इन द बॉडी इज टर्म टू बी एज वैक्सीनेशन. उसका जो इंट्रोडक्शन करते हैं हम किसी की बॉडी में तो उस चीज़ को हम बोलेंगे वैक्सीनेशन. अब बेसिकली इसमें होता क्या है, इसकी जो पीछे प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया कि वो मेमोरी पे काम करती है, तो इसके पीछे का प्रोसेस क्या है तो हम वो समझेंगे. जैसे कि एक पर्टिकुलर एंटीजन है, समझ लो. हाँ, हम इससे ही पूरा समझ लेंगे, पूरा कंसेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद वी विल गो इनटू द डिटेल्स. अब जैसे कि एक एंटीजन है, वो एंटीजन किसी के बॉडी में जा रहा है, तो बॉडी में जाएगा तब हमारी बॉडी क्या रिकॉग्नाइज करेगी, समझ लो. तो हमारी बॉडी समझेगी कि भाई ये तो भाई मेरे बॉडी की कोई चीज़ है ही नहीं, ये तो कुछ बाहर का ही है. जैसे कि समझ लो ये वायरस गया है कोई, तो बॉडी उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करेगी, अपनी आर्मी बनाएगी. फाइन, तो वो आर्मी क्या है, तो वो एंटीबॉडीज़ है. वो एंटीबॉडीज़ कैसे हमारी बॉडी को पता चलता है कि हमारे बॉडी में कुछ गलत हो रहा है. फाइन, तो हमारी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट होते हैं टी एंड बी. तो टी लिम्फोसाइट जाके बी लिम्फोसाइट को बोलेगा कि भाई यू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, तो ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने लगे. फाइन, अब ये पहली बार हमारी बॉडी में आए, अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, इस एंटीजन के साथ फाइट करके इसको ख़त्म कर देंगे. फाइन, तो न्यूट्रलाइजेज द एंटीजन्स, एंटीबॉडी एंटीजन्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं. फाइन, बट स्टिल आप ऐसा सोचते हो कि टीचर ऐसा होता है बट हमें तो डिजीज़ हो जाते हैं, ये एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं फिर भी हमें डिजीज़ हो जाते हैं, तो ऐसे क्यों. तो हमारे जैसे कि नेशन की बात कर लो, आर्मी बहुत सारी है, फिर भी क्या होता है कि भाई कभी कभार अटैक हो भी जाता है हमारी कंट्री पे. फाइन, तो आर्मी इतनी सारी है फिर भी अटैक क्यों हो रहा है, बिकॉज वो जो है पर्टिकुलर अटैक करने वाले वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं. अब एंटीबॉडीज़ को पता ही नहीं होगा कि भाई कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं. तो पहली बार जब इसका एनकाउंटर होगा हमारे बॉडी में फर्स्ट टाइम, तो हमारी बॉडी को उसे समझने में देर लगेगी. तो वो जो रिस्पॉन्स होगा, पहला रिस्पॉन्स है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स जैसे हमने पढ़ लिया, अगर प्राइमरी रिस्पॉन्स है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स लो होगा. पर दूसरी बार जब यही चीज़ हमारी बॉडी को अटैक करने आएगी तो सेकेंड एनकाउंटर पे सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा. तो सेकेंड टाइम हमें जब होगा तो हम इस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं. तो ये हमें कंसेप्ट पता है. तो इसी कंसेप्ट पे क्या किया रिसर्चर्स वगैरह ने, क्या किया, इसी चीज़ को पहले से कि भाई डिजीज़ होने की राह क्यों देखें, एक बार हो जाए डिजीज़ फिर दूसरी बार तो नहीं होगा, पर एक बार में हम मर गए तो. फाइन, दैट इज़ द reason the people thought they had a detailed study on it, and then on came the thing that is vaccine. फाइन, तो क्या किया जाता है पहले से ही, जैसे कि बच्चों को टीबी की वैक्सीन दे देते हैं, निमोनिया की दे देते हैं, हेपेटाइटिस की दे देते हैं, फिर मीजल मम्स रूबेला की दे देते हैं, देन वी हैव मेनी अदर, टेटनस, एंड देन फाइन many BCG, there are many vaccines that are being given to the children. फाइन, तो उसमें इट इज़ नॉट बीन लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड कि एक बार डिजीज़ हो जाने तो फिर तो नहीं होने वाला, तो वैक्सीन दिलाने का क्या मतलब है. नहीं, क्या किया जाता है कि यही जो एंटीजेंस होते हैं उस एंटीजेंस को मार के, उस एंटीजेंस को डेड करके या तो वीक करके या उनके प्रोटीन्स लेके ऐसे इंजेक्शंस बनाए जाते हैं और वो इंजेक्शंस बच्चों में डाल दिए जाते हैं. अब ये जब एंटीजेंस बच्चों के बॉडी में गए हैं तब उनकी बॉडी क्या समझेगी कि भाई ये तो कुछ बाहर की चीज़ है. फाइन, तो हमें क्या करना है, इसको ख़त्म करना है. तो तभी ये तो डेड है, इसीलिए डिजीज़ तो नहीं करने वाले, ऑब्वियसली दोज आर डेड, बट देयरफॉर दे आर नॉट गोइंग टू कॉज एनी काइंड ऑफ डिजीज़, बट दे विल प्रोवोक द बॉडीज़ इम्यून सिस्टम. तो हमारी बॉडी क्या करेगी, ऑलरेडी इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडीज़ बना के रखेगी. फाइन, फिर ये बन गए हैं,
फाइन, इनके पास जाएंगे, ये तो ऑलरेडी डेड ही है, फाइन, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये एंटीबॉडीज़ बन गए। अब समझ लो उसी बच्चे को जिसको इसकी वैक्सीन ऑलरेडी मिल चुकी है, तो उस बच्चे में जब जैसे कि समझ लो टीबी की वैक्सीन उसे मिल गई है, समझ लो, अब उस बच्चे में टीबी के एंटीजेंस, टीबी के बैक्टीरिया जा रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी बॉडी के पास, तो हमारे बॉडी के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मेमोरी की प्रॉपर्टी है, तो भले वो बच्चे 2 साल का था और तब उससे वो टीबी की वैक्सीन दी गई थी, बट स्टिल उसकी बॉडी के पास रिमेम्बरिंग पावर है, उसके टी सेल्स और बी सेल्स के पास, इसीलिए बॉडी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेगी उस बैक्टीरिया को कि भाई ये तो पहले हमारे बॉडी में आ चुका है, तो तुरंत ही वो आर्मी जो ऑलरेडी फॉर्म हो गई है वो कहीं से वापस क्या करेगी, आ जाएगी और इन सारे बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगी, जिनसे उस बच्चे को वो डिजीज़ नहीं होगा। सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन, फाइन। और इम्यूनाइजेशन क्या होता है वही हम पढ़ेंगे। हाँ, तो यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई कि वैक्सीन्स देने पर क्या होगा, जैसे कि इंजेक्शन दिया है डेड, समझ लो कि ये मीज़ल्स का इंजेक्शन दिया है, मीज़ल्स के वायरस का। अब मीज़ल्स के वायरस अंदर जाएंगे बॉडी के अंदर, समझ लो, तो ये वायरस क्या करेंगे, प्राइमरी रिस्पॉन्स देंगे, फाइन। अब धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ बनेंगे, पर ये तो डेड करके हमने डाले हैं, तो डिजीज़ तो होने नहीं वाला। बट साथ ही साथ क्या होता है, ये जो वैक्सीन है वो बी मेमोरी सेल और टी मेमोरी सेल को भी उसी टाइम क्या कर देती है, अल्टीमेटम दे देती है। तो बी मेमोरी सेल और टी मेमोरी सेल इस वायरस को हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रखेंगे। तो अभी सेकेंड टाइम सब्सिक्वेंट एनकाउंटर हुआ, समझ लो, वही चीज़ का, वही सेम वायरस लिविंग फॉर्म में आपकी बॉडी में एंटर हो रहा है कहीं से भी, तो क्या होगा, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर पे पैथोजेंस उनको पहचान जाएंगे, क्योंकि बी मेमोरी सेल और टी मेमोरी सेल तो उनको जानते हैं, तो क्या होगा, एंटीबॉडी सेकेंडरी रिस्पॉन्स आएगा जो बहुत फास्ट होता है, और सारे एंटीबॉडी पैथोजेंस को क्या कर देंगे, इन्वेड कर देंगे या तो ख़त्म कर देंगे। फाइन, समझ में आया? यस सर। अब जैसे कि हम बात करें वैक्सीन हर चीज़ में दी जाती है, नहीं, वैक्सीनेशन हर चीज़ में पॉसिबल नहीं है, समझ लो। वैक्सीनेशन की हम बात करें तो वैक्सीनेशन हर चीज़ में, हाँ यस, दे सकते हैं, बट जैसे कि हम बात करें जिस चीज़ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्नेक बाइट है, समझ लो, तो आपने स्नेक बाइट के लिए एंटी वेनम पहले से ले रखा है, तो वो नहीं काम करेगा, क्यों, बिकॉज उसको वही इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, फाइन। तो उसके लिए उसका क्या करना पड़ता है, जब आपको स्नेक बाइट करता है तब उसके लिए उसी टाइम आपको वैक्सीन लेनी पड़ेगी, उसी टाइम आपको पैसिव इम्यूनिटी लेनी पड़ेगी, मतलब में वही एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली लेने पड़ेंगे, फाइन। वी हैव टू इमीडिएटली टेक ऑन द एंटीबॉडीज एंड देन ऑन, सो दैट इसका कोई असर ही ना हो, इस पॉइजन का हमारे बॉडी पे कोई असर ही ना हो, फाइन। सो दैट इज़ द कंसेप्ट कि भाई वैक्सीन हम देते हैं, बट जैसे कि टेटनस है, स्नेक बाइट है, उस चीज़ में भले आपको वैक्सीन मिल गई है, फिर भी डॉक्टर क्या करते हैं, टेटनस में जब भी आप गिर जाओ, समझ लो, तो आपके बॉडी में आपने ऑलरेडी ये ले रखा है, पर गिर जाओ तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि भाई सॉइल से बैक्टीरिया आपके बॉडी में आ जाए, तो बाई चांस कई बार डॉक्टर टेटनस का किसी ने वैक्सीन ना ली हो तो उन्हें पता ना हो, तो इसकी वजह से वापस से दे भी देते हैं। स्नेक बाइट में तो इमीडिएट देते ही हैं, समझ लो, फाइन। सो दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट वैक्सीन हर चीज़ में देते हैं, बट जैसे कि स्नेक बाइट है, उन ऐसी चीज़ों में आपको पैसिव इम्यूनाइजेशन लेना ज़रूरी है, इमीडिएटली एंटीबॉडीज़ लेना ज़रूरी होता है, फाइन। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, दैट इज़ इम्यूनाइजेशन। अब जब इम्यूनाइजेशन की हम बात करेंगे तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है, तो प्रोसेस बाय विच बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी अगेंस्ट द एडमिनिस्टर्ड वैक्सीन, बराबर। तो जैसे कि ये वैक्सीन हमारे बॉडी में डाल दी, फाइन, किसी बच्चे में ये वैक्सीन को इंजेक्ट करवा दिया है, फाइन, ये बच्चा है, समझ लेना, तो जैसे कि इसके अंदर वैक्सीन को इंजेक्ट करवा दिया है, अब वैक्सीन इंजेक्ट हो गई है, तो इसके सामने क्या होने वाला है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगे। तो वो जो प्रोसेस है, बराबर, जब द प्रोसेस बाय विच द एंटीबॉडीज इज प्रोड्यूस अगेंस्ट दिस वैक्सीन इज टर्म टू बी एज इम्यूनाइजेशन, कि हमारी बॉडी इम्यून हो रही है, हमारी बॉडी खुद को सेव करने के लिए एंटीबॉडीज़ बना रही है, तो उस प्रोसेस को, द प्रोसेस बाय विच द बॉडी इज प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज इज टर्म टू बी एज वैक्सीन, उसको क्या बोलेंगे, वैक्सीन बोलेंगे। और द चेंज अकर इन द बॉडी आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द
वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के बाद जो हमारे बॉडीज़ में चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस को, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्यूनाइजेशन। तो उस चेंजेस में क्या होता है, हाँ भाई, तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं। किसी बच्चे को, जैसे कि हम बोलते हैं वैक्सीन के बाद बुखार आता है, तो क्यों बुखार आता है? बिकॉज उनकी बॉडी में कुछ ऐसा गया है जो उसकी बॉडी का नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसकी बॉडी फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो जब ये प्रोसेस होती है तब बॉडी हीट हो जाता है, तो इसके लिए उनको फीवर होता है। सो बेसिकली इम्यूनाइजेशन कुछ नहीं है, इट इज़ अ प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जो वैक्सीन को एक बार बॉडी में डालने के बाद शुरू होती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्यूनाइजेशन। या तो फिर ऐसे चेंजेस जो बॉडी में होते हैं एक बार वैक्सीन अंदर चले जाए फिर, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। फाइन। अब हम कुछ ऐसी बात करेंगे जैसे कि वो इम्पॉर्टेंट है, तो जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब में अलग अलग डीएनए को हम जॉइंट करते हैं, और वो जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, तो दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फाइन। इससे क्या कर रहे हैं हम? लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन कर रहे हैं, समझ लेना। इससे हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ दी वैक्सीन कर रहे हैं। ये जो होता है, ये जो प्रोसेस है डीएनए टेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस है, उनसे क्या होता है, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजेंस इन बैक्टीरिया और ईस्ट। जैसे कि ये जो हमने वैक्सीन बनाई, तो ये जो है इतने सारे वायरस हम लाते कहाँ से हैं? इतने सारे जो वायरसेस हैं, इतने सारे जो बैक्टीरिया हैं जिनको हम डेड करके डालते हैं या फिर अटेन्यूएटेड करके किसी की बॉडी में डालते हैं, तो इतनी सारी वैक्सीन बनाते कैसे हैं? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। फाइन। सो वो क्या करता है, हमें एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन बनाने में हेल्प करता है। तो जैसे कि इनका जो पॉलीपेप्टाइड समझ लो, जैसे कि एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड मतलब में क्या होता है कि जो एंटीजन के प्रोटीन्स होते हैं, समझ लो हम ऐसे बात करते हैं कि एंटीजेंस के जो प्रोटीन होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है वैक्सीन बनाने के लिए, तो वो हम किस में बनवा रहे हैं? वो हम बैक्टीरिया की बॉडी में और वो हम ईस्ट की बॉडी में बनवा रहे हैं, बराबर। और वो कैसे? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। फाइन। जैसे कि समझ लो इनका जैसे कि कोई पर्टिकुलर वायरस है तो उनका जीनोम लेंगे जो, और फिर जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है उसमें वो जीनोम इंसर्ट करवा देंगे। फाइन। तो अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इस जीन को क्या करेगा, इसमें से प्रोटीन बनाएगा। तो कौन सा प्रोटीन बनाएगा भाई? वो वायरस का ही प्रोटीन बनाएगा। फाइन। तो वो वायरस का प्रोटीन जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होंगे, फाइन, वैसे वैसे ये डीएनए भी मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? वो डीएनए भी मल्टीप्लाई होगा। किसका डीएनए? वो वायरस का डीएनए। और ये वायरस का डीएनए क्या करेगा, उसमें से प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या तो फिर बैक्टीरिया में से या तो ईस्ट में से, और फिर ऐसे बल्क में इंजेक्शंस बनाते हैं, बल्क में वैक्सीन बनाते हैं। फाइन। जैसे कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हम ईस्ट में से बहुत अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बाय द मेथड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इतने सारे वैक्सीन बनाओ तो इतने सारे वही सेम वायरस को हमें किल करना है, उसे फिर क्या करना है, उसे एटेन्यूएटेड करना है, और उसको फिर क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो वो हम मल्टीप्लिकेशन किस में करवाते हैं? तो भाई इनका जो डीएनए होता है वही ले लेंगे, फिर उसे भी किसी बैक्टीरिया में डाल देंगे, और फिर वो बैक्टीरिया जैसे जैसे डिवाइड होगा उनका डीएनए भी डिवाइड होगा, और वही मैनर से क्या होता रहेगा कि भाई उसका जो प्रोटीन है वो बनता रहेगा। वो प्रोटीन हम ले लेंगे और फिर उसके इंजेक्शंस बनवा देंगे। फाइन। समझ में आया? तो एंटीजन के जो प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, बहुत सारी पेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, फिर उनसे क्या बन जाता है, वैक्सीन बन जाती है। जैसे कि हमने बात की, इसमें वायरस हो सकते हैं या तो फिर बैक्टीरिया हो सकते हैं, समझ लो, या जो डेड फॉर्म में है, या फिर जो वायरस बैक्टीरिया जो भी है उनके प्रोटीन ले सकते हैं हम। फाइन। पॉलीपेप्टाइड चेन्स ले सकते हैं जिससे हमारे बॉडी में ऐसी रिएक्शन शुरू होती है। फाइन। सो बेसिकली आजकल वैक्सीन हम इजीली बना रहे हैं। फाइन। अब we shall in the coming class study about allergies, a very 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 important topic for both the students, NEET as well as boards. Thank you.